Class 9th, here we are with chapter 2, Is Matter Around Us Pure? So, before starting the chapter, let me show you the contents of this chapter. This is the list of the topics which we have to cover up in this chapter. So, in this particular video, we will cover up these first 4 topics, that is introduction, mixture and its types, solution and its properties, and then concentration of a solution. So let's get started. We will try to read paragraph by paragraph and then we will try to understand the chapter. In the beginning of the chapter, the introduction is given as how do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water or juice that we buy from the market are pure. So the writer is telling that the salt, the pure ghee or the pure milk which we usually buy from market are how do we identify that these things are. हम ये जितनी भी चीज़ें मार्केट से ख़रीदते हैं, ये जितने भी कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, उन सब के ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ होता है डैट इज़ प्योर. तो एक कॉमन पर्सन होने के नाते हम प्योर का मतलब क्या समझते हैं? हम प्योर का मतलब समझते हैं दैट द सब्सटेंस हैज़ नो अडल्ट्रेशन एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम अडल्ट्रेशन. दैट मीन्स उसके उस सब्सटेंस के अंदर या उस मटेरियल के अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, तो हम उसे एक प्योर मटेरियल का नाम दे देते हैं. बट for a scientist, all these things are actually mixtures of different substances and hence not pure. लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए ये सब चीज़ें सिर्फ मिक्सचर्स हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के और प्योर नहीं हैं. एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन्स. मिल्क एक मिक्सचर है वाटर का, फैट का, प्रोटीन्स का. बट वॉट वी यूज़ टू नो दैट मिल्क इज़ अ प्योर सब्सटेंस. बट साइंटिफिकली मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन्स. When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. A pure substance consists of a single type of particles. जब हम एक साइंटिस्ट कहता है कि कोई चीज़ प्योर है तो उसका मतलब ये है कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सेम नेचर के हैं, उनके जो केमिकल नेचर है वो सेम है. अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. कोई भी प्योर सब्सटेंस सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स को कंटेन करता है. और दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं अ सब्सटेंस इज़ द प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर. जैसे कि आपने देखा था कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस. तो कोई भी प्योर सब्सटेंस होगा तो उसमें सिर्फ सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर होगा. सपोज़ कोई सॉलिड है तो उसमें सारे पार्टिकल्स सॉलिड होंगे, तब हम उसे प्योर कहेंगे. और अगर कोई लिक्विड है तो उसमें सारे पार्टिकल्स लिक्विड के होंगे, तब हम उस सब्सटेंस को प्योर कहेंगे. That is, a pure substance consists of single type of particles. As we look around, we can see that most of the matter around us exist as mixtures of 2 or more pure components. अगर हम हमारे आसपास देखें तो हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं वो सब मिक्सचर्स हैं और वो सब प्योर कंपोनेंट्स के मिक्सचर हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सी वाटर is a mixture, minerals, mixture, soil, these all are mixtures. So here we can take note of the introduction portion, what we have learned in the introduction section. We have learned that anything which occupies space and has mass is called matter. It is very simple. We have revised that. And matter can be divided in 2 categories, that is pure substance and mixtures. Pure substance are those which consist of single type of particles and are of same chemical nature. Pure substance वो होते हैं जिनमें single type of particles होते हैं और उनका same chemical nature होता है. Mixtures वो होते हैं जिनमें 2 या फिर more particles consist होते हैं. Now next move to the next topic,
that is, what is a mixture? Mixtures are constituted by more than one kind of pure form of matter known as a substance. Mixture एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से मिलकर के बने हुए होते हैं. A substance cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. कोई भी सब्सटेंस किसी भी अदर फॉर्म ऑफ मैटर में सेपरेट नहीं किया जा सकता किसी फिज़िकल प्रोसेस से. एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड का. सोडियम क्लोराइड सब जानते हैं क्या होता है, NaCl होता है. NaCl दैट इज़ सोडियम क्लोराइड. इसे कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है. तो हम कॉमन सॉल्ट को, ये दैट मीन्स NaCl को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं इवापोरेशन के प्रोसेस से, लेकिन हम केवल NaCl को अलग अलग मॉलिक्यूल्स में सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग पार्टिकल्स में सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस. Sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents. हम सोडियम क्लोराइड को उसके सब्सटेंसेस में नहीं सेपरेट कर सकते हैं बिकॉज उसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सिमिलर काइंड ऑफ हैं. और सिमिलरली शुगर इज़ अ सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर and its composition is the same throughout. Soft drinks and soil are not single substances. Soft drinks और soil single substances नहीं होते हैं. Whatever the sources of a substance may be, it will always have the same characteristic properties. सोर्स चाहे कोई भी हो किसी सब्सटेंस का, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेम रहती है. Therefore, we can say that a mixture contains more than one substance. और इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक मिक्सचर एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिला हुआ होता है. Now the next topic which we have to study is types of mixtures. We will see various types of mixtures. So here in your NCERT books, activities are given. This is activity 2.1. It's very easy. It is in very easy language, so you have to read it and I'm sure you will understand this. And this is activity 2.2. ये भी आपको ही रीड करनी है और ये बहुत इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है. इसी एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हुए फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है दैट यू हैव टू रीड. इस टॉपिक को समराइज़ करते हुए दीज आर द नोट्स. दैट इज़, mixture consists of more than one kind of pure substances which can be separated by physical method. एक मिक्सचर एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर के बना हुआ होता है और उसे फिज़िकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं. मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हीट्रोजीनियस मिक्सचर. तो ये ही दो टॉपिक्स को, इन्हीं दो मिक्सचर्स को आपको दो एक्टिविटीज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है. दैट्स वाई आई हैव गिवन यू homework to read those activities. Now let us see first type of mixture, that is homogeneous mixture. A mixture is said to be homogeneous if all the components of the mixture are uniformly mixed and there are no boundaries of separation between them. कोई भी मिक्सचर होमोजीनस तब कहा जाता है तब उसके कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके होते हैं और उनके बीच में कोई भी बाउंड्रीज़ नहीं होती जो उन्हें सेपरेट कर सके. इसे आप एग्जांपल से समझिए. बहुत ही अच्छा एग्जांपल है शुगर इन वाटर. जब आप शुगर को वाटर में ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती है और उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता. हम डिज़ोल्व होता देख सकते हैं, हम उसे अलग अलग नहीं दिखेंगे. हमें शुगर और वाटर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे एक दूसरे में, इसीलिए वो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा. नेक्स्ट इज़ नंबर 2, दैट इज़ heterogeneous mixture.
A mixture is said to be heterogeneous if all the components of the mixture are not uniformly mixed and there are visible boundaries of separation between them. एक मिक्सचर को heterogeneous तब कहा जाएगा तब उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगे, नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, और उनमें विजिबल बाउंड्रीज दिखेंगी हमें सेपरेशन की. इसे भी आप एग्जांपल से समझिए. सपोज़ वाटर एंड सैंड. जब आप मिट्टी को, सैंड को वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होंगी. हमें सैंड के पार्टिकल्स इजीली विजिबल होंगे और वाटर जो है इजीली अलग से विजिबल होगा. सो दैट्स वाई इट इज़ अ हीट्रोजिनस मिक्सचर. एंड एयर भी आपको वाटर के अंदर बबल्स के फॉर्म में दिखेगी अगर आप एयर को भी वाटर में मिक्स करेंगे तो. सो दैट्स वाई दीज आर हीट्रोजिनस मिक्सचर्स. Now the next topic which we have to study is what is a solution. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. You come across various types of solution in your daily life. Lemonade, soda water, etc. are all examples of solutions. एक सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का. आपने बहुत सारी डेली लाइफ में सॉल्यूशंस देखे होंगे. फॉर एग्जांपल लेमनेड इज़ अ सॉल्यूशन, नींबू पानी, सोडा वाटर इज़ अ सॉल्यूशन. एंड हम यही सोचते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसेस को मिला करके जब सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं तब हम उसे सॉल्यूशन कहते हैं. बट ऐसा नहीं है. सॉलिड सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस भी देखे जाते हैं. फॉर एग्जांपल है एलॉयज़. एलॉयज़ जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर होता है और उसे सॉलिड सॉल्यूशन भी कहा जाता है. और गैसियस सॉल्यूशन है फॉर एग्जांपल एयर. एयर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस के, इसलिए वो एक गैसियस सॉल्यूशंस हैं. तो कहीं भी बात आए सॉल्यूशन की तो सिर्फ ये माइंड में नहीं आना चाहिए कि एक लिक्विड होगा और उसमें सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस मिक्स कर दी जाएगी, बल्कि सॉल्यूशन किसी भी तरीके का हो सकता है. सॉलिड इन सॉलिड का हो सकता है, लिक्विड इन लिक्विड का हो सकता है, गैस इन गैस का भी हो सकता है. और इन अ सॉल्यूशन देयर इज़ होमोजेनिटी एट पार्टिकल लेवल. पार्टिकल लेवल पे होमोजेनिटी हो सकती है, मींस इवननेस हो सकती है. फॉर एग्जांपल लेमनेड जो होता है वो पूरा का पूरा लेमनेड थ्रू आउट सेम टेस्ट करता है. ये शो करता है कि शुगर और सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. इसीलिए यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड को हम होमोजेनिटी कह सकते हैं कि वहाँ पे पार्टिकल लेवल पर होमोजेनिटी मौजूद है. सो हेयर इन योर बुक्स दैट इज़ more to know box is given. It is about alloys. Alloys are mixtures of two or more metals or a metal and a non-metal and cannot be separated into their components by physical methods. alloy एक ऐसा मिक्सचर है जो या तो दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिला करके बनाया जाता है, मेटल या फिर नॉन मेटल को मिला करके बनाया जाता है, और उसके कंपोनेंट्स को हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. और alloy इज़ कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर, और इसे मिक्सचर इसलिए कंसिडर किया गया है बिकॉज इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है ही उन सब की प्रॉपर्टी को शो करता है एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन. और उन सब का कंपोजिशन वेरिएबल हो सकता है, मींस किसी मेटल का कंपोजिशन हम ज़्यादा कर सकते हैं, किसी मेटल का कंपोजिशन हम कम कर सकते हैं. उनकी जो क्वांटिटी है उसे हम चेंज कर सकते हैं. और यहाँ पे नीचे आपको एग्जांपल दिया हुआ है ब्रास. Brass is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper. Brass एक alloy है जो कि 30% zinc और 70% copper से मिला करके बनाया जाता है. Next we have components of solution. A solution has a solvent and a solute as its components. आप ये कह सकते हैं कि solution के 2 components होते हैं. One is solvent and the other is solute. The component of solution that dissolves the other component in it, usually the component present in larger amount, is called a solvent.
ऐसा कंपोनेंट जो अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट को डिज़ोल्व करता है और वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं. On the other hand, the component of the solution that they dissolve in the solvent usually present in lesser quantity is called the solute. और ऐसा कंपोनेंट जो खुद डिज़ोल्व होता है और वो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं. तो इसे आप एग्ज़ाम्पल से समझिए, बहुत ही अच्छे से आपको एग्ज़ाम्पल से ये समझ में आएगा. फर्स्ट एग्ज़ाम्पल ये ले लीजिए, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर. सपोज़ आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है ऑलरेडी, एंड यू आर एडिंग शुगर इन दिस वाटर. सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यू विल मेक अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर. और आपने ऐड किया है उसके अंदर शुगर को, तो शुगर यहाँ पर कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसलिए वो सॉल्यूट हो जाएगा. और वाटर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया था, तो वाटर यहाँ पे लार्जर क्वांटिटी में है और अपने अंदर ये शुगर को डिज़ोल्व कर लेगा, इसलिए वो सॉल्वेंट कहलाएगा. सो ऐसा कंपोनेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट को डिज़ोल्व करता है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं. और दूसरा कंपोनेंट जो खुद डिज़ोल्व होता है, लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं. So whenever you see a solution of sugar in water, you will understand that sugar is solute and water is solvent in that solution. Now next move to the other example, a solution of iodine in alcohol. अब इस solution का नेम पढ़ते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ अल्कोहल सॉल्वेंट है और आयोडीन सॉल्यूट है. इस सॉल्यूशन को टिंचर ऑफ आयोडीन भी कहा जाता है. यहाँ आयोडीन सॉलिड फॉर्म में हम सॉल्यूट की तरह ऐड करते हैं और अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में होता है, वो सॉल्वेंट की तरह प्रेजेंट होता है. तो अल्कोहल ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और आयोडीन कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव इज़ aerated drinks like soda, water, etc. are gas in liquid solutions. These are gas in liquid solution. That means liquid होगा कोई, यहाँ पे water दिया हुआ है, वो solvent की तरह act करेगा. और gas for example CO2 होती है aerated drinks में, cold drinks में, वो solute की तरह act करेगी. नेक्स्ट इज़ एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस. जैसे कि हमने देखा था गैस इन गैस का भी सॉल्यूशन होता है. एयर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है गैस इन गैस सॉल्यूशन का. वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है नंबर ऑफ गैसेस का. बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है एयर के अंदर और मिक्सचर है. इस होमोजेनियस इसलिए कह रहे हैं बिकॉज all gases are in gaseous state, so it is a homogeneous mixture. मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं एयर के? ऑक्सीजन दैट इज़ 21%, नाइट्रोजन दैट इज़ 78%, एंड देयर आर लिस्ट इज there is a list of this. There are carbon dioxide is there and many more minor gases are also there. The other gases are present in very small quantities. So these are the examples of solutions. So here we have next topic, that is properties of solution. Number one property is a solution is a homogeneous mixture. कोई भी सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है, डैट इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसके पार्टिकल्स हर जगह पूरे सॉल्यूशन में. नंबर टू इज़ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर. अगर किसी सॉल्यूशन के पार्टिकल की डायमीटर मेजर की जाए तो वो 1 नैनोमीटर से भी कम की होगी. डैट मीन्स कि हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं. Because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution. इनकी इतनी स्मॉल साइज़ होने के बाद ही अगर हम लाइट की बीम पास करेंगे तो वो उसे स्कैटर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इनकी लाइट लाइट जो है वो सॉल्यूशन से विजिबल नहीं हो पाएगी, इसलिए सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन. इसलिए उस लाइट किस तरीके से ट्रैवल कर रही है सॉल्यूशन में वो हम नहीं देख पाएंगे.
Next is the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. सॉल्यूट के पार्टिकल्स को हम सॉल्यूशन में से फिल्ट्रेशन प्रोसेस से नहीं सेपरेट कर सकते हैं, और सॉल्यूट के पार्टिकल्स सेटल डाउन भी नहीं होते हैं और अनडिस्टर्ब्ड, अगर हम उसे अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे, मीन्स हमें थोड़े टाइम के लिए, जैसे अगर कोई सॉल्यूशन होता है उसे थोड़े टाइम के लिए रख दिया तो कई बार ऐसा होता है कि उसके पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होंगे, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक सॉल्यूशन कभी भी सेटल डाउन नहीं होगा, दैट इज़ ए सॉल्यूशन इज़ स्टेबल. So here you can take the summary notes. We have studied so far, that is two components of solution, solvent and solute. Solvent जो कि अपने अंदर डिज़ोल्व करता है दूसरे सब्सटेंस को और लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है. सॉल्यूट जो खुद डिज़ोल्व होता है सॉल्यूशन में और लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में. प्रॉपर्टीज़ सेम हैं ऑलमोस्ट. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देख ली कि होमोजेनियस मिक्सचर है. नेक्स्ट हमने साइज़ भी देख ली, डैट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर. देन दे नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ smaller particle size, and here is another main point that they don't show Tyndall effect. Actually इसी को ही स्कैटरिंग, अगर स्कैटरिंग हो जाए लाइट बीम की तो वो टिंडल इफेक्ट कहलाया जाता, बट स्कैटरिंग नहीं हुई लाइट बीम की, इसीलिए हम लिखेंगे कि सॉल्यूशंस जो है टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं. द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ये भी हमने देख लिया. देन the solution is stable and solute particles do not settle down when left.